الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین گرامی اور دارالامور کے طلباء کرام، تیسرے محاضرے کی تیسری نشست آج ہے۔ 3 سال قبل اسلامی تاریخ اور افکار پر جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں 2 سال ہم لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خلفائے راشدین کے دور کے اختتام تک کی گفتگو کی۔ اس مرحلے میں قبل اس کے کہ ہم بنو امیہ کا دور شروع کریں، وہ تاریخ شروع کریں، اس سے پہلے اسلامی فکر کو سمجھ لیں اور اسلامی فکر کو پیش کر کے ایک مرتبہ اس مذاکرے پر آ جائیں کہ دور جدید زمانہ حاضر جس تیز رفتاری کے ساتھ اپنی پہنچ بنا رہا ہے، اس تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں اسے سنبھالتے ہوئے سچائی اور امن کے پیغام کے ساتھ لے جانا ہے، تو ہمیں کن چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے، اسی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل مرجع اسلامی فکر کا جو ریسورس ہے، جو مصدر ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آج اسی عنوان سے ہمارے سامنے تاریخ فکر اسلامی کا پہلا مرجع قرآن مجید، اس کی سیرت اور اس سے استفادہ۔ کہ قرآن مجید کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، کس طریقے سے قرآن مجید ہر زمانے کے اعتبار سے بات کرتا ہے اور ہم کیسے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کچھ جھلک یہاں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کچھ رہنمائیاں ہوں گی جس کی روشنی میں ہم اپنی سیلف اسٹڈی یعنی مطالعہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو عنوان ہوگا، یہ عنوان ہمارا آج تو نہیں مکمل ہو سکے گا، لیکن یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی تھاٹ اور کسی بھی فکر اور کسی بھی سوچ کو سمجھنے کے لیے ہمیں لمیٹیشن جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، ایبلٹی بھی اور لمیٹیشن بھی، پہنچ بھی اور حد بھی۔ اسی طرح سے انسان کی علمی اور فکری حدیں اور وحی کی ضرورت، کہ انسان کی پہنچ کتنی ہے اور اس پہنچ کے بعد بالآخر وحی کی ضرورت کیا پیش آتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی۔ وحی معنی اور مفہوم اور اس کی قسمیں، تھوڑا وحی کو بھی ہم لوگ سمجھیں گے، کیونکہ عام طور پر جب لفظ وحی کا استعمال ہوتا ہے تو ہم قرآن مجید کی آیت ہی تصور کرتے ہیں، اس کی وسعتیں کہاں ہیں اور فکری طور پر اس سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں اور کیوں ہم انسانوں کے لیے سب سے زیادہ وہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دعوت فکر و عمل کے اہم مضامین۔ قرآن مجید میں یہ جو ٹاپکس ہیں، جو مضامین ہیں، اہم کیا ہیں جو ہمیشہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس سوچنے کے بعد اس سے ہمیں عمل وجود میں آتا ہے اور رہنمائی اور گائیڈنس ہمیں ملتی ہے۔ قرآن مجید کا عظیم الشان معجزہ جو ہے علم اور تدبر، کس انداز کا ہے، کچھ مثالیں اس کی پیش کی جائیں گی، فکر و عمل کے لیے چند مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک عنوان ہوگا، قرآن کیا صرف عربوں اور اس ماحول کے لیے تھا؟ ایک بڑا اعتراض غیر مسلمین کی طرف سے اور خاص طور پر اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین کی طرف سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بلسان عربی مبین کا لفظ قرآن سے نکال کر کے کہ عربوں کے مزاج کے لحاظ سے یہ کتاب نازل کی گئی، اس لیے نعوذ باللہ یہ پوری دنیا کی قیادت کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد عہد حاضر کی فکری یلغار یعنی دور جدید میں اسلامی فکر اور سیرت قرآن، موجودہ دور میں جو تھاٹس آ رہی ہیں، جو سوچ لوگوں کے دماغوں میں آ رہی ہیں، اس سوچ کا اثر دوسروں پر نہیں بلکہ اپنوں پر زیادہ پڑ رہا ہے، ان پر پڑ رہا ہے جو قرآن مجید کے حامل ہیں، جو نمازوں میں اور تراویح میں شریک ہوتے ہیں، وہ اشکال پیدا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے جس کو اس کے پہلے سنا بھی چکے ہیں کہ نمازی گھرانے کا بچہ، لیکن فکری معاملات اس کے ذہن و دماغ میں ایسے ہیں کہ جب اس کے سامنے سوال کیا جاتا ہے اسلامک تھاٹس کو لے کر کے، اسلامک شریعہ کو لے کر کے، تو وہ برجستہ جواب دیتا ہے کہ آئی تھنک شریعہ شوڈ بی ری ڈیفائن، کہ شریعت کو پھر سے ڈیفینیشن کرنا چاہیے موجودہ حالات کو رکھ کر کے۔ موجودہ حالات کو رکھ کر کے ڈیفینیشن کی جائیں گی تو جتنی ڈیفینیشنز
चल रही हैं, जो नौजवानों की पसंदें चल रही हैं, उन पसंद के एतबार से दुनिया ने गुज़िश्ता 25 सालों के अंदर कोई भलाई तो हासिल नहीं किया। कोई एक ऐसी एग्जाम्पल और मुल्क आपको नजर नहीं आएगा कि जिसकी करेंसी गुर्बत की तहों में गई हो और लोगों ने इस नई डिफिनेशन के जरिए से उसको सहारा देकर के बराबर लाया हो। बल्कि अब हम देखेंगे कि जो गरीब था गरीब से गरीब होता जा रहा है, और जिसके पास सलाहियत थी वो सलाहियतों के बुनियाद पर कैप्चर करता चला जा रहा है। तो जब इन चादरों के अंदर रहनुमाई नहीं मिली, तो रहनुमाई जहां से मिलेगी उसी मकाम से, उसी मकाम पर वापस जाने में हमारी भलाई है। ये हमारे कंटेंट्स हैं और ये मुश्तमलात हैं। इन मुश्तमलात पर हमारी गुफ्तगू का आगाज होता है। सबसे पहले एक कोटेशन, एक जुमला हमने यहां पर नोट किया है और उसका टाइटल है इंसान की इल्मी और फिक्री हदें और वही की जरूरत। कि लिमिटेशन इंसान की क्या है, कितना सोच सकता है और कितनी ज्यादा दूर तक उसके थॉट्स और उसके ख्यालात जा सकते हैं। यहां पे लिखा है हमने सोच और फहम, हमारी फिक्र, सोच और हमारी फहम जितना हम ग्रास्प कर सकते हैं, जितना हम ले सकते हैं, उससे नताइज फिक्रों को जन्म देते हैं। सोच और फहम से जो रिजल्ट निकालते हैं हम, उससे कोई ना कोई फिक्र बनती है, कोई ना कोई थॉट वजूद में आता है। फिक्र तहजीब और तमद्दुन बनाती है। जब कोई फिक्र होती है तो उसी से कल्चर और तहजीब और तमद्दुन और सिविलाइजेशन बनता है। और तहजीब और तमद्दुन का उरूज और जवाल, फॉल एंड डिक्लाइन, कल्चर और सिविलाइजेशन उरूज में कैसे आया, सिविलाइजेशन गिरा कैसे, ये इल्म तारीख का उन्वान हमेशा का रहता है। हम तारीख के औराक में देखते हैं हड़प्पा कल्चर क्या था, सिंधु घाटी की तहजीब क्या थी, उस तहजीब से लेकर के लोग सबक हासिल करते हैं और किसी कौम को उससे जोड़ते हैं। उसके बाद उरूज और जवाल की दास्तान चलती है, उस पर बहसें होती हैं, उस पर ख्यालात वजूद में आते हैं। इसी तरह से इंसान के ओरिजिन के बारे में, जानवरों के ओरिजिन के बारे में, जानदारों के ओरिजिन के बारे में फिक्रें सिविलाइजेशन बनाती है और तारीख उसको पेश करती है कि क्या असबाब थे उरूज के और क्या असबाब थे जवाल के। तारीख इन्हीं ताने बाने से रोशन मुस्तकबिल का जीना तामीर करती है। तारीख ही एक ऐसा टॉपिक और उन्वान है जो चीजों को महफूज रख देता है, और ये इस उन्वान की रोशनी में हम देख सकते हैं कि कौन सी कौम तरक्की की तरफ जाएगी और कौन सी कौम तनज़्ज़ुली की तरफ, गिरने की तरफ जाएगी। जो कौम अपने माजी की आजमूदा बुराइयों से, आजमूदा का मतलब तजर्बा जिसका हो चुका है कि ये बुराइयां थी, ये कमियां थी जिसकी वजह से ये कौम तबाह हुई, जो कौम अपने माजी की आजमूदा बुराइयों से इबरत और आजमूदा अच्छाइयों से नमूना हासिल करके आगे बढ़ती है, वह तरक्की के जीने तय करती है। पीछे पलट कर देखती है कि क्या गलतियां हमने की जिसकी वजह से ये तबाही आई, और क्या अच्छाइयां थी जो नमूना है हमारे लिए। उन अच्छाइयों को लेकर बुराइयों से सबक हासिल करती है तो वो तरक्की के जीने तय करती है और आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो कौम पिदरम सुल्तान बूद, ये खास तौर पर जुमला लफ्ज हमने लिखा है क्योंकि इससे मुराद हमारी अपनी तरक्की का मामला है, हमें अपनी फिक्रों को सही करने का मामला है और आगे की आने वाली जनरेशन के लिए इस्लाम सही और सालिम पहुंचाने की जिम्मेदारी है। ये लफ्ज हमारी जिंदगियों में बहुत पाया जाता है। पिदरम सुल्तान बूद का मामला का मतलब यह है कि हमारा बाप बादशाह था। बाप बादशाह था तो क्या हुआ, हम क्या हैं ये सोचो। क्यों बादशाहत गई ये सोचो, किस वजह से वो बादशाह था उसको वापस लाओ। जो कौम पिदरम सुल्तान बूद की खाम ख्यालियों में रहकर जमाने का साथ छोड़ देती है, वो जमाने की क़यादत तो क्या, जमाने की दास्तान बनने के लायक भी नहीं रह जाती। ये जुमला हमने नोट किया है, कोट किया है, ताकि इसी की रोशनी में हम यह देखें कि कुरान किस बात का मुतालबा हमसे करता है। ये कुर्रे अर्ज यानी पूरी जमीन बहुत अरसे दराज से इंसानियत का मस्कन है। इंसान यहां रह रहा है, बस रहा है, और इंसान अल्लाह की अता करदा ताकत से, अपने ज़हन और दिमाग से तारीकियों को अपनी पहुंच से मुनव्वर करता है। जहां जहां पहुंच सकता है वहां जहां जा करके इल्म के खजाने निकाल करके लाता है, डिस्कवर करता है, इन्वेंशंस करता है। बल्कि इंसानियत की हदें तो इतनी बढ़ गई हैं कि इंसान समुंदर की तहों से लेकर के इस जमीन की खला से ऊपर निकल करके मरीख तक पहुंच करके अब सूरज के करीब पहुंचने की इंसान कोशिश कर रहा है, ताकि वहां से भी चीजें लाए और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए और नामो नमूद के लिए वो काम करे।
और ये सब क्यों होता है? ये सब चंद सवालात हैं कि जहान क्या है, ये दुनिया क्या है, कैसे ये आलम वजूद में आया है, ये कैसे बना, उसके जहन में ये सवाल आता है। पहले भी आता था, अब भी आता है। इसका मोजिद और खालिक कौन है? कोई तलाश करके मोजिद और खालिक को पा लेता है, क्रिएटर, सस्टेनर उसको पा लेता है, और कोई उसका इनकार कर बैठता है। हदों तक मामला होता है कि किस एतबार से वो रिजल्ट निकाल रहा है। इसकी वजह क्या थी? एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इस दुनिया को क्यों बनाया गया? क्यों आज तक इस दुनिया के अलावा किसी और प्लैनेट पर, किसी और जगह इंसान मखलूक डिस्कवर नहीं कर सका, और न उसका इनकार कर सकता है कि यकीनी तौर पर कोई और जगह पे मखलूक नहीं है? क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या मकासिद हैं? अगर कोई क्रिएटर है, कोई खालिक है, तो उसका और क्रिएशन, मखलूक के दरमियान में कोऑर्डिनेशन क्या है? क्या रिश्ता है? क्या राबता है? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही सिलसिला जैसे चला आ रहा है बहुत जमाने से, ऐसे ही चलता रहेगा? कोई अंजाम भी होने वाला है? और लोग कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? ये ख्यालात होते हैं। इन ख्यालात पर हर कौम अपनी अपनी फिक्र रखती है, हर माहिर अपनी अपनी थॉट रखता है। कोई सही नहज पे जाता है तो कोई गलत जाता है। कोई कहता है कि बाद से बादल मौत है, तो कोई कहता है कि आवागमन का सिलसिला जारी है, यही पलट पलट के आ रहे हैं। कभी वो इंसान थे तो कभी कुत्ते बन गए, कभी कुत्ते ने अच्छा काम कर दिया तो इंसान बन गया। कोई कहता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं है, मर के मिट्टी में मिल गए, खत्म हो गया मामला। तो फिर ये चीजें क्या हैं? ये रिसाइकल हो रहा है या कोई सिस्टम है? ये सारे के सारे ख्यालात और सब इस मुअम्मे को हल करने में लगे रहते हैं। यहीं से फिक्रें जन्म लेती है, यहीं से थॉट्स वजूद में आते हैं। और जब इंसान सोचता है, फिक्र करता है, इन मुअम्मों को, इन चीजों को जानकारी के लिए दो ही चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। एक तो उसके जो 5 ऑर्गन्स हैं, हवासे खमसा, जिसमें कुव्वत सामिया, सुनने की कुव्वत, हियरिंग, साइट, टेस्ट, स्मेल, टच, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, जो कि कम्युनिकेशन के जराए हैं, मुआसलात के जराए हैं, जिनके जरिए से वो इल्म हासिल करता है। टच करके, कभी सूंघ करके, कभी जायके के जरिए से, कभी सुन करके, कभी देख करके, और जो चीजें उसके जराए ये हवासे खमसा से हट करके होती है, अक्ल का इस्तेमाल करता है, सोचता है। लेकिन जिस तरह से ये 5 ऑर्गन्स हवासे खमसा इल्म हासिल करने के मामले में महदूद है, तो इसी तरह से अक्ल का भी एक दायरा है, अक्ल की भी एक हद है। इंसान वहां पहुंच करके अपनी सोच छोड़ देता है, या हद से ज्यादा अगर बढ़े तो गलत राहों पे वो निकल जाता है। और जब सोचता है इंसान तो कौन से उलूम वजूद में आते हैं, एक झलक उसकी देखते हैं हम, कि जब इस दुनिया के बारे में इंसान गौर करता है और गौर व फिक्र से जब काम लेता है, तो देखता है कि बहुत बड़ा हिस्सा तबई अशिया और मादा से मुताल्लिक है, एटम से मुताल्लिक है, मैटर से मुताल्लिक है, एलिमेंट से मुताल्लिक है, दुनिया का अक्सर एक बड़ा हिस्सा, और जिसकी तारीफ और तारुफ के वास्ते कई उलूम वजूद में आते हैं। कई उलूम वजूद में आते हैं, फलसफा, कलाम, मंतिक, ये सारे के सारे उलूम पहले वजूद में आ चुके हैं। आज भी ये उलूम मौजूद हैं, मगर दूसरे नामों से हैं। फिलॉसफी की तहों में जाएं तो बहुत सारे उलूम वजूद में आते हैं। खासतौर पर फिलॉसफी ने इस उन्वान पर बहुत तरक्की की, और माहिरीन फन ने इस पर बहुत ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल किया। लेकिन दुनिया में वो चीजें जो मैटर और मादे से ताल्लुक नहीं रखती हैं, वो किस दायरे में आएंगी? तो फिर माहिरीन ने उसके लिए एक और इल्म ईजाद किया, जिसको मेटाफिजिक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। मावराए तबीआत, कि जो तबाई चीजों से वजूद में ना आने वाले उलूम हो, मेटाफिजिक्स, यानी जिन दुनिया में वो अशिया जिनका तायुन तबीयत और मादा से ना हो सके, मैटर से या एलिमेंट्स, और उसके भी जो लवाजिमात है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेवलप शक्ल जो है बायोलॉजी होती है, क्योंकि जब तक एटम और उसके लवाजिमात सही काम नहीं करेंगे, सेल वजूद में ही नहीं आ सकता, और सेल वजूद में ना आए तो फिर बदन वजूद में नहीं आ सकता। तो गोया कि इससे हट करके जिसका तायुन ना हो सके, माबादुत तबीयत, मेटाफिजिक्स लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गैर मादी अशिया से बहस की जाती है, जैसे रूह है, ख्वाब है, क्या है रूह का मामला, इंसान की रूह के मामलात क्या है। और फिलॉसफी है,
माकुलात, लॉजिक है, इथिक्स है, एस्थेटिक्स है, जमालियात, इसी तरह से नफ्सियात भी है। ये सारे उलूम आज वजूद में है। इन्हीं की बुनियादों पर नतीजे अखज किए जाते हैं कि क्या वजह है, रिलेशंस क्या है, रवाबित क्या है, रूह के मामले एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बहुत सारे उलूम भी वजूद में आते हैं। और सबसे बड़ा साइकोलॉजी इसका सबसे बड़ा एक मजहर है और सबसे बड़ा हिस्सा है। साइकोलॉजी, नफ्सियात, कि इंसान की सोच का असर उसके जिस्म पर कैसे पड़ता है, जिस्म का असर उसकी सोच पर कैसे पड़ता है। साइकोसोमैटिक एक लफ्ज उसमें होता है। कभी कभी एक दर्द के बारे में डॉक्टर बताते हैं कि बिल्कुल सिम्टम्स, असरात हार्ट अटैक जैसे होते हैं, लेकिन पता है चलता है चेकअप के अंदर सारी चीजें नॉर्मल है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको सूडो हो गया है, यानी झूठा दर्द, एक सोच का दर्द, और बिल्कुल सिम्टम्स वैसे ही होते हैं। वो क्या है, स्ट्रेस क्या है, काउंसलिंग क्या है, और फिर लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी, शख्सियत के अंदर छुपी हुई तहें क्या है, सबकॉन्शियस के मामलात क्या है, हिप्नोसिस क्या है। सिगमंड फ्राइड इस बारे में बहुत काम करने वाला शख्स है, जिसके बहुत सारे एतराजात भी और जिसके जवाबात भी दिए गए। ये सारी फिक्रें जन्म लेती हैं मेटाफिजिक्स और उसकी शाखों से। लेकिन एक मरहला ऐसा आता है कि एक मरहले पर मादा, मैटर, तबीयत, ये सब का सब नाकाम हो जाता है उलूम की वजाहत के लिए। मेटाफिजिक्स से सहारा लिया जाता है, मगर इंसान इस मेटाफिजिक्स के सहारे में भी नाकाम हो जाता है। और उसके बाद कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको वो कहता है कि ये पैरा साइकोलॉजी है, पैरा साइकोलॉजी है, या कहता है कि सिक्स सेंस है। बहुत सारी इसकी मिसालें इंसान की जिंदगी में पेश आती हैं कि चार लोग अलग अलग जगह पे, मगर अचानक ख्याल एक ही तरह का दिमाग में आया और काम को शुरू किया। बाद में पता चला कि अचानक अपने जहन में आया था और ये काम तो फला जगह चल रहा है। उसकी बहुत आसान सी मिसाल कि रोजमर्रा जिंदगी में हम सबको वो पेश आती है चीजें जिनसे हम बहुत अटैच रहते हैं। बात वहां चल रही है, हम फोन कर देते हैं या उनका फोन आ जाता है। माँ और बेटे की मिसाल, फोन किया आपने, पता चला नहीं घर में तुम्हारी ही बात चल रही थी और अम्मी ने कहा कि अभी उसका फोन आएगा। ये क्या चीजें हैं, ये कौन से जराए हैं, ये कौन सा कम्युनिकेशन है जो दिलों में बात डाल देता है, जो दिमाग में बात डाल देता है। इस पर माहिरीन के अपने अपने ख्यालात बहुत है, ख्वाब के मामले में, रूह के मामले में, सोच के मामले में। मगर अब आइए इस्लामी नुक्ते नजर की तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को बिखराव की तरफ जाने के बजाय हमें एक रहनुमाई दे दी है, जिसको हम वही इलाही से ताबीर करते हैं। वही इलाही से ताबीर करते हैं। अब उसको थोड़ा सा हम लोग समझे वही इलाही। अब तक हम लोगों ने जो बात समझी कि इस्लामिक थॉट और फिक्र कैसे बनती है और कुरान को समझने के वास्ते और कुरान की थॉट्स को समझने के वास्ते वही की जरूरत क्या है, उसके वास्ते अब तक हम लोगों ने समझा कि दुनिया में इंसान की इल्मी पहुंच और अकली पहुंच कितनी है। या तो मादे और मैटर से जुड़ी हुई चीजों तक पहुंचेगा, या मेटाफिजिक्स तक पहुंचेगा, या उससे बढ़ेगा तो पैरासाइकोलॉजी तक पहुंचेगा और उसकी शाख दर शाखें वजूद में आएंगी, मगर इत्मीनान हासिल नहीं होगा। इस मकाम पर जहां इंसान की अकली सतह पहुंच से बाहर होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वही का जरिया दिया है। वही क्या है? वही यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी खास तजल्लियात से वजूद बख्शा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में लाया और इल्मुल अस्मा का सबक दे दिया गया। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, पूरी मखलूकात में उसे मुमताज फरमा दिया। यहां पर यह बात इस्लाम के नुक्ते नजर से किसी किस्म की क्लैश की नहीं है कि माहिरीन इस बात का दावा करते हैं कि करोड़ साल पहले या मिलियन ईयर पहले का मामला था, और इस्लाम के क्लैश कहीं नहीं होता है कि इंसान की जिंदगी कितनी है, और न ये इबरत और नसीहत के मामले में कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे पड़ा जाए। ये अल्लाह का मामला है कि इस जमीन को कितने सालों में अल्लाह ने बसाया। हाँ, इतनी बात हमारे यकीन के लिए काफी है कि इस जमीन को बसाने के लिए जो भी वक्त अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल हुआ, और जमीन जब इंसानियत के रहने के लायक पूरी तरह से हमवार हो गई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। ये यकीनी बात है और वही की रोशनी में है। बाकी से हट करके बातें हैं, सब अजम्पशंस हैं, सब कयास आराइयां हैं। कोई तहकीक के नुक्ते नजर तक नहीं पहुंच सकता कि इंसान का ओरिजिन क्या था और डेवलपमेंट इंसान का कैसे हुआ। ये सब के सब अजम्पशंस हैं
اور جن حضرات نے ان تحقیقات کو پیش کیا ہے وہ دوسری تحقیق میں کہیں نہ کہیں اپنے تحقیق کے خلاف بات لکھ گئے ہیں. جیسے چارلس ڈارون کی تحقیقات پڑھیے تو اس کی کتابوں میں باتیں مل جائیں گے, اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے. ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے, انسان کے فلاح و بہبود کے لیے ہی لگایا گیا. 24 گھنٹے کا نظام, آربٹ اور ایکسس پر سورج کا گردش کرنا, اور ایک خاص فاصلے سے ایک ستارے کے خاص فاصلے پر زمین کا رکھا جانا, جہاں پر گرمی بھی ہو, سردی بھی ہو, ہریالی بھی ہو, اور آکسیجن خصوصی طور پر وہاں پر پنپ سکنے کے امکانات, یہ سب کے سب چیزیں اللہ نے اس کی خدمت میں لگا دیا. اس پر کچھ فرائض عائد کر کے دنیا کی ہر چیز پر قادر بھی کر دیا, ہر چیز پر قادر کر دیا, یہاں تک کہ آکسیجن تک کے معاملات پر اسے قادر کر دیا. چاند, سورج, ہوا, پانی, چرند پرند سب بلا حجت اس کی خدمت میں لگے رہے. اب اس عالم میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے انسان اور خادم انسان. تو پھر انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کی حیثیت جب سب انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا تو انسان کی ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بھیجنے کی حکمت ہونی چاہیے. جب ایک انسان اپنی چھوٹی سی عقل, اپنے چھوٹے سے دائرے سے کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا, کوئی نہ کوئی اس کی منزل ہوتی ہے, گول ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں کرتا, تو احکم الحاکمین اتنی عظیم الشان مخلوق یعنی انسان کو بھی بلا مقصد اس دنیا میں نہیں بھیج سکتے, بلا مقصد نہیں بھیج سکتے. اور وہ اعلی مقصد ہے رب کائنات کی نیابت, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس کی نیابت, اس کے طرز اور طریقے کے مطابق ماسٹر بن کر کے اس دنیا اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت اور اس کو پروان چڑھانا اور بڑھانا. اب اس نیابت کی خاطر دو کام انسان کو انجام دینے ہوتے ہیں, اس بکھری ہوئی کائنات کی حفاظت کرے اور ٹھیک ٹھیک کام لے. ہر جگہ ہر چیز بکھری ہوئی موجود ہے, اس کو تلاشنا انوینشن کہلاتا ہے, اور اس سے صحیح صحیح کام لینا یہ دنیا کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے. نیوٹن نے ایک لا اخذ کیا اور اسے قوت ثقل اور گریویٹیشن کا نظام وجود میں آیا, لیکن نیوٹن نے انوینشن تو نہیں کیا, ڈسکور کیا, اس نے کریشن نہیں کیا, اس نے تخلیق نہیں کیا. ایسی ہزارہ چیزیں اس بکھری ہوئی کائنات میں موجود ہیں, اور اس پر غور و فکر کر کے, اس سے سبق حاصل کر کے, اس کو تلاش کر کے انسانیت کے لیے پیش کرنا, یہ انسان کی ذمہ داری اور خاکہ ہے. سارے کام میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر اس کی بندگی سے انحراف نہ کرے, جو بھی کام کرے اسی کی بندگی کے تحت کرے. انہی دو کام کی خصوصیت انسان کو دی جاتی ہے. اب اس دو کام کے لیے انسان اس وقت تک اپنی مناسب کارکردگی نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اسے معلوم نہ ہو کہ اس دنیا کے وسائل کی حیثیت کیا ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے, نالج کے بغیر, علم کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتا اس کو, اور اس کی کیا اہمیت ہے. ایک بچے کے ہاتھ میں چھوٹا سا کھلونا دے دیا جائے, یہی پریزنٹر دے دیا جائے, تو اس کو بہت زیادہ سمجھے گا, تو بس لائٹ اور گھمانے کا ذریعہ سمجھے گا. لیکن ایک پڑھے لکھے شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کو جانے گا کہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے افیکٹو طریقے پر سلائیڈ کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے, اور یہ پریزنٹر کہا جاتا ہے. اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے, معلوم کرنا پڑتا ہے, وسائل بھی معلوم ہو اور اس کا استعمال بھی معلوم ہو. پھر ان وسائل سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ بھی معلوم ہو, حالات کے تقاضے کے لحاظ سے کس طرح کی چیز ایجاد کرنی ہے یہ بھی اسے معلوم ہو. اب دیکھیے, زمینیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوازمات کا ظاہر سی بات ہے کہ روٹی اور چاول اور یہی ساری چیزیں انسان کھائے گا, کہاں سے پیدا ہوں گی چیزیں, اور اللہ تعالیٰ نے لوازمات رکھ رکھے ہیں. تو جن لوگوں نے وسائل پر غور کیا اور تقاضوں پر غور کیا, ان لوگوں نے ایسے کھیت وجود میں لائے جس کے لیے کھلی زمین کی بھی ضرورت نہیں رہی. پنک ایگریکلچرل سسٹم آپ دیکھیے کہ جس کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی جگہوں میں کتنی چیزیں اگائی جا رہی ہیں اور انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے. گرچہ رب العزت کی فرما برداری کا معاملہ ہٹا ہونے کی وجہ سے کچھ غلط معاملے بھی ہو رہے ہیں, بیٹی بیگن اور اس طرح کی چیزیں جس کے اندر کچھ زہریلے مادے بھی ڈالے جا رہے ہیں, جو سائنس کے اساتذہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہ اس لیے ہوا کہ رب العزت کی فرما برداری سے انسان ہٹا, لیکن جو کام اس نے کیا وہ تقاضے کے لحاظ سے کیا, پیش آمدہ حالات میں اللہ کی مرضی کیا ہے. یہ ہر جگہ رہے, جب تک جس قوم میں رہی وہ قوم ترقی کرتی رہی. قرآن مجید ان قوموں کے حالات کو بار بار دہرا کر کے بتاتا ہے. اب اس کے واسطے
جیسا کہ ابھی بات شروع میں آئی کہ یا تو یہ ایجادات، تقاضے اور نئی نئی چیزوں کو وجود میں لانا، یا تو وہ اپنے 5 آرگن سے کرے گا یا اپنی عقل سے کرے گا، لیکن جس طرح سے عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ وہ کام نہیں کر سکتی. لہذا مقصد تخلیق، خالق کا منشا کہ اللہ چاہتا کیا ہے پیدا کرنے والا، مخلوق کی خدمت کیوں ہم کریں، کیوں اپنا پیسے میں سے، اپنی محنت کی کمائی میں سے 2.5% اٹھا کے اسے ہم دے دیں، کیوں قربانی کرے تو ایک حصہ اس کے لیے وقف کر دے، مخلوق کی خدمت، اصلاح نفس، کیوں دل کے اندر ہم لوگوں کے لیے محبت اور خدمت کا جذبہ بھرے، اصلاح معاشرہ کے مقصد کی حکمت اور مصلحت جاننے کے لیے براہ راست کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہو. اور خالق اور مخلوق کے درمیان میں ڈائریکٹ واسطہ کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس طاقت کو انسان نہیں برداشت کر سکتا. اسی واسطے کا نام وحی ہے، اسی واسطے کا نام وحی ہے جس کے ذریعے سے خالق کی براہ راست ہدایت انسان تک پہنچ سکے. اسی علم اور واسطے کا نام وحی ہے، اور اسی وحی کی بنیاد پر ہماری اسلامی فکر کی بنیاد پڑتی ہے. اور یہ فکر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے پڑ چکی تھی، اور اسی فکر کی بنیادوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تہذیب و تمدن کے عروج کی طرف لے جایا گیا، اور اسی فکر کی بنیاد پر یہودیت اور عیسائیت کا عروج ہوا، اور اسی فکر کی بنیاد پر اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا. اسی کا نام وحی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، لیکن چونکہ ہر بندہ انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں جڑ سکتا، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی مخصوص کا انتخاب فرماتے ہیں اور اپنے فرشتے کے ذریعے سے یا اپنے کلام کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچواتے ہیں جس کا نام وحی ہے. اب وحی کا معاملہ جو ہے وہ 3 طریقے کا ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہم سمجھ لیں کہ وحی کا اوریجن کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے. وحی عربی لفظ سے ہے جس میں ایحاؤن اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے وہ نکلا ہوا ہے، جس کے لغوی معنی ہے الاشارۃ السریع، جلدی سے کوئی بات کہہ دینا، بہت جلدی سے کوئی اشارے سے بات کو سمجھا دینا. انسان جب کسی بھیڑ میں ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ بہت جلدی ہوتی ہے، بس اشارہ کرتا ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے اور انسان اس کو پورے پیغام کو بھی سمجھ لیتا ہے. رمز و کنایا اشارے میں ہو، یا بے آواز ہو، یا تحریر کے ذریعے سے ہو، یا نقش کے ذریعے سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اس کے ذریعے سے ہو، یا کسی عضو کے استعمال سے ہو. دوسرا معنی ہے الاعلام فی خفائن، دوسرے کو پوشیدہ طور پر کوئی بات پہنچا دینا، دل میں بات ڈال دینا، پیغام بھیجنا. لغوی مفہوم کے اعتبار سے قرآن مجید میں لفظ وحی لغوی مفہوم، لغوی مطلب لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے وحی سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے عام ہے. لٹریری طور پر نبی کے لیے خاص ہے. آگے آتا ہے، دیکھیے آپ اس کو، کہ لفظ وحی تمام جانداروں کے لیے، حتیٰ کہ شیطانوں کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی وحی فطری، نیچرل، میسج پہنچنا، بات کا دل میں آنا، کسی معاملے کے تعلق سے کسی ذریعے یا کسی ذریعے کے بغیر، وربل کمیونیکیشن، نان وربل کمیونیکیشن، ٹچ کیے بغیر بھی بات دل میں آ جانا، اس کو الہام بھی کہتے ہیں. یہ جملہ جانداروں میں عام ہے. شیاطین کے روابط کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. اس کے معاملے کے تعلق سے سورہ نحل آیت نمبر 86 میں تذکرہ ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی. اب یہاں دیکھیے، شہد کی مکھی کے تعلق سے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہاں پر مفہوم لیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں پر اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں اور جھوپڑیوں میں گھر بنائے. یہ اس کے دل و دماغ میں فیڈ ہو گئی بات. اس لیے آپ دیکھیں زمانے دراز سے، عرصے دراز سے شہد کی مکھی ایسے ہی مقامات پہ چھتے لگاتی ہے. شیاطین کے تعلق سے آپسی کلام کے بارے میں بھی کہا گیا قرآن میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. سورہ انعام آیت نمبر 211. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک نہ ایک دشمن ضرور پیدا کیے ہیں جن و انس کے شیاطین میں سے، جو ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. یہاں پہ دل میں وسوسے ڈالنے کے تعلق سے شیطان کے لیے بھی وحی کا استعمال کیا گیا. تو لغوی اعتبار سے پہلی قسم وہ ہے وحی فطری،
اس میں जिन्नात, इंसान, परिंदे, मोमिन, काफिर सब बराबर हैं, यानी किसी के भी दिल में बात आ सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मोमिन बुजुर्ग होगा उसी के दिल में बात आएगी, किसी के दिल में भी बात आ सकती है और वो सच साबित हो सकती है। चलते चलते अचानक एहसास हुआ कि इस राह से ना जाए, खतरा है, वापस आ जाता है, पता चलता कि हाँ वहां खतरा था। ये लफ्ज वही, ये इल्हाम है और ये हर इंसान के लिए बराबर है। दूसरा वही है इजादी, जहन में खाके के मुताबिक कोई चीज तैयार करना, जिसे इदराक कहते हैं, इदराक कहते हैं परसेप्शन। कोई नई चीज वजूद में आती है, ये अल्लाह की तरफ से भेजी नहीं होती है, बल्कि दिलो दिमाग में बात आ जाती है कि इस नहज पे हम काम करें तो ये डेवलपमेंट हमें हासिल होगा, इसके बारे में सोचे तो हमें ये रहनुमाई मिलेगी। ये भी इल्हाम की एक किस्म है, लेकिन ये खास है इंसानों के लिए। पहली वाली थी वो जनरल थी, तमाम जानदारों के लिए। दूसरी वाली इंसानों के लिए खास है, जिसमें मोमिन काफिर दोनों शामिल हैं। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउला मिन अताई रब्बिका व काना अताउ रब्बिका महजूरा, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 91। यानी जब मोमिन और गैर मोमिन दोनों कोशिश करते हैं तो हम उनको मदद देते हैं। तेरे खुदा की बख्शिश और फैज किसी से बंद नहीं है, जो मेहनत करता है वो पाता है। ये दुनिया की तरक्की के राज वाली आयत है कि दुनिया में मेहनत करने के ऊपर फैसले होते हैं और अकीदे के एतबार से फैसले आखिरत में होते हैं। जो मेहनत करेगा पाएगा, जो कौम मुनज़्ज़म होकर के कोशिश करेगी उसका नतीजा देखेगी, और जो कौम बेतरतीब होकर के खूब दुआएं भी करेगी तो कोई असरात नहीं होंगे। यह आज की सिचुएशन हम लोगों की, ये कौम जो अल्लाह की नाफरमान, जिसके दिलो दिमाग के अंदर बराबरी का मैसेज पैगाम है ही नहीं, जिसकी सोच और फिक्र के अंदर कुछ चीजें ऐसी पल रही हैं जो सारी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी वो पाते चले जा रहे हैं, उरूज हासिल करते चले जा रहे हैं। और हम सच्चाई पर होने के बावजूद, रो रो को हरम शरीफ में दुआएं करने के बावजूद भी नहीं हासिल कर रहे हैं। उसकी वजह यह आयत है कि जो कोशिश करता है, जो कोशिश करता है मुनज़्ज़म एतबार से, हम उसे देते हैं, और बेतरतीब बेमुनज़्ज़म होकर के तफरीक और इंतशार के साथ आहें और दुआएं भी काम नहीं करती इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में सिस्टम चलता है और अल्लाह उसी सिस्टम से चलाते। तो ये वही है ईजादी, इंसानों के लिए खास है। तीसरी किस्म वही है इरफानी, जब कोई इंसान मुकम्मल इत्तिबाई शरीयत और रियाजत से तज़किये कल्ब हासिल कर ले, प्योर हो जाता है दिल, उसका साफ हो जाता है, तो इसका कल्ब एक शफाफ आईने के मानिंद हो जाता है और खास उलूम उस पर मुनकशिफ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, समझ में आने लगते हैं। इसको कश्फ कहते हैं। और अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह अनकबूत आयत नंबर 119, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग राह दीन और इताअत में मुजाहिदा करते हैं, कोशिश करते हैं और उसमें लग जाते हैं, तो हम अपनी हिदायत की राह उन पर खोल देते हैं। कई बुजुर्गों के वाकयात होते हैं, ऐसी बातें वो बता देते हैं, वो गैब की बातें नहीं होती हैं, और वो ऐसी बातें नहीं है कि वो आलिमुल गैब होने का दावा कर दे, नऊज़ बिल्लाह, लेकिन दिल पर हाल साफ हो जाता है कि चेहरा देख करके जिस तरह से एक माहिर नब्बाज मर्ज का पता बता देता है, इसी तरह से ये बुजुर्गान दीन चेहरा देख करके दिलों के मर्ज का पता बता देते हैं। इस एतबार से वही का लफ्ज 3 हिस्सों में इस्तेमाल हुआ, लेकिन लिटरेरी तौर पर देखें, इस्तिलाही तौर पर देखें तो जैसा कि उम्दतुल कारी में वजाहत मिलती है, कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़ल अला नबी मिन अंबियाइहिम, अल्लाह ताला को वो कलाम जो इसके नबी पर नाजिल हुआ है, वही वो जरिया है जिससे अल्लाह ताला अपना कलाम किसी मुंतखब बंदे और रसूल तक पहुंचाता है, और उसके रसूल, इस रसूल के जरिए से इंसान तक। लफ्ज वही अपने मफहूम के एतबार से अंबिया के लिए इतना मशहूर हो चुका है कि अब नबी के अलावा किसी के लिए वही का जुमला नहीं बोला जा सकता। कोई ये ना कहे कि मेरे ऊपर वही हुई है, गलत है, क्योंकि लोगों जब कोई लफ्ज मफहूम मशहूर हो जाता है तो उसको खास कर लिया जाता है उसी मीनिंग में। जैसे नमाज, ये नमाज का लफ्ज फारसी लफ्ज है, अरबी के लफ्ज है, सलात से कोई मतलब ही उसका नहीं है, लेकिन अपनी समझ के लिए, अपने मफहूम के एतबार से लफ्ज नमाज खास अरकान के लिए इतना मशहूर हो चुका है कि इसको दूसरे माने में न बोला जा सकता, न समझा जा सकता। इसी तरह से वही को सिर्फ नबियों के साथ खास तौर पर कर इतना मशहूर हो चुका है कि सिर्फ वही का लफ्ज नबियों के लिए खास होगा, और नबी के अलावा जो होगा उसके लिए इल्हाम, कश्फ ये इस्तेमाल होगा। और इल्हाम और कश्फ शरई दलील नहीं हुआ करते, शरई दलील सिर्फ नबियों की वही हुआ करती है। अब यहां तक हम लोग जो पहुंचे हैं, इससे ये बात जहन में हम डाल लें कि इंसान की इल्म की हदें और अक्ल की हदें जहां खत्म होती हैं, उसके बाद
वही हमें जवाब देती है, और वही है जो नबियों पे नाजिल हुई, और नबियों में से सबसे आखिरी वही जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुई वो दो तरीके की थी। एक वो वही जो अल्लाह के अल्फाज के साथ मिन किताब में लिखी हुई है, जिसको अल कुरान कहते हैं, तिलावत की जाने वाली वही मतलू कहते हैं। दूसरी वो वही जो अल्लाह की जानिब से भेजी गई हिदायत है, जिनमें अल्फाज और आमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, और उस वही को गैर मतलू कहते हैं और उसको सुन्नत और हदीस कहते हैं। ये दो चीजें हमारी इस्लामिक फिक्र और थॉट की बुनियादें हैं। इन बुनियादों के बाद से फिर हमारा परसेप्शन, हमारा तर्ज और तरीका, हमारी रिसर्च और हमारा तदब्बुर तरक्की करता है। इसके बगैर नहीं कर सकता। इनमें से दोनों में से कोई चीज हटाई जाएगी तो इस्लामिक फिक्र अधूरी रह जाएगी। इतनी बात समझने के बाद हम फिर से वापस आते हैं उसी उन्वान पर। अब एक मगरिबी मुसन्निफ मॉन्टेन ने लिखा है कि इंसान का इल्म बहुत ही नाकिस है, इसके हवास गैर यकीनी और खता पजीर है, वो अपनी पहुंच के एतबार से फैसले करता है, उसके आगे नहीं सोच सकता। कभी उसका इल्म यहां तक था कि जमीन ठहरी हुई है, सूरज गर्दिश कर रहा है। कभी उसका इल्म यहां पहुंचा कि सूरज ठहरा हुआ है, जमीन गर्दिश कर रही है। कभी उसका इल्म यहां तक पहुंचा कि हर चीज गर्दिश में है। किसका ख्याल कौन सी मंजिल नजर में है, सदियां गुजर गई कि जमाना सफर में है। तो ये उसकी पहुंच है। लेकिन वो लिखता है कि गैर यकीनी और खता पजीर है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हकीकत को ही हमारे सामने पेश कर दिया है। आगे लिखता है कि हवास पर यकीन करने के लिए एक ऐसा आला होना चाहिए जो उसकी तस्दीक और तकजीब कर सके। एक ऐसा हमारे पास पैरामीटर होना चाहिए कि जो बता सके कि हाँ ये सच है, ये गलत है, और उस आले की जांच के लिए भी एक और आला आना चाहिए, और उसकी जांच के लिए भी एक और आला चाहिए। यह सिलसिला चलता रहेगा, मगर इंसान जो भी बनाएगा अपनी सोच के एतबार से ही बनाएगा और गलती का शिकार होगा। इसी में ब्रैकेट में बात सामने रहनी चाहिए कि अहले मशरिक के पास ये आला वही इलाही है, जिस पर जाके वो रुक जाता है कि हाँ ये बात कह दी गई, ये बात वो पाएगी, कभी न कभी पाएगी, और ये हमारी हद है। और अहले मगरिब ने इसे भुला दिया। अहले मगरिब ने इसे भुला दिया, और बहुत सारे अहले मगरिब ने भी इसी वही इलाही यानी कुरान मजीद से मोती को निकाल करके फिक्र से काम लिया है। वरना ये डार्क एज से निकल करके आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में कैसे आते, जिसको खुद इन्होंने डार्क एज कहा, तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं भटके हुए थे और कहीं ना कहीं से उन्होंने कुछ हासिल किया है और उस हुसूल के जरिए से वो आगे बढ़ रहे हैं। आज के बेशतर मुफक्किरीन, साइंसदान अपनी तलाश और जुस्तजू के बाद इस मरहले पर आकर किसी न किसी सूरत में अल्लाह की जात का इकरार करते हैं, चाहे वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो। 19वीं सदी में साइंस का मिजाज ला अदरियत था, यानी कुछ नहीं है, हर चीज नेचर की बुनियाद पर चल रही है, क्योंकि इतनी बारीकी में इंसान नहीं पहुंचा था। एटम की तहों के अंदर नहीं पहुंचा था, वो एटम के टुकड़ों के अंदर से एनर्जी निकालने के काबिल अभी इंसान नहीं हुआ था। तो इंसान ने इस बात का दावा कर दिया कि ला अदरी यानी कुछ भी नहीं है और सब कुछ नेचर की बुनियाद पर चल रहा है। 20वीं सदी के साइंसदान इस बात इलाह की शहादत कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे सामने पेश कर देते हैं, चाहे वो क्रोमोसोम के अंदर के राज हो या डीएनए के अंदर बनने वाले मामलात हो। सर जेम्स जीनियस जैसे माहिर रियाजीदान ने लिखा है कि इस कायनात के पीछे एक ऐसा रियाजीदान है, मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट। इस जुमले पर गौर कीजिए, और साइंस की फील्ड से आप लोगों में से जो लोग वाकिफ हैं इसका मजा वही लेंगे कि उसने जो लिखा है कि इस कायनात के पीछे एक ऐसा रियाजीदान है कि अगर इसके हिसाब में एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी गलती हो जाए तो ये निजाम शमसी दरहम बरहम हो जाएगा। ये निजाम शमसी दरहम बरहम हो जाएगा। एटम, उसके अंदर पाई जाने वाली चीजों और उसकी रफ्तार और उसका तवाजुन, जो अनकरीब आप लोग पढ़ेंगे, उसका तवाजुन जर्रा बराबर की कमी बेशी हो जाए, 44 जोड़े के बजाय 46 के बजाय 48 और 48 के बजाय 43 बनने लगे क्रोमोसोम के अंदर, क्या सूरत हाल पेश आएगी। इसने मजा लेकर के लिखा है, फिर से सुनिए। इस कायनात के पीछे एक ऐसा रियाजीदान है कि अगर इसके हिसाब में एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी गलती हो जाए तो ये निजाम शमसी, पूरा सोलार सिस्टम दरहम बरहम हो जाए। ये फौकुल फितरत हस्ती, ये अव्वलीन सरचश्मा, ये अजीम रियाजीदान, उनके लिए
ایک ہی جامع لفظ استعمال ہو سکتا ہے, وہ ہے اللہ. ہم نے اردو میں لکھ دیا, ورنہ اسے گاڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. لفظ اللہ جو ہر لمحے ہر آن ہماری فکر سے پہلے ہم لوگ یہ سنتے ہیں عقیدتاً کہ اللہ رب العزت ہماری سوچ سے پہلے فیصلہ فرمانے والے ہیں. اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذریعہ دیا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ امینو ایسڈ جانتے ہیں, جو لوگ ڈی این اے اور آر این اے کو جانتے ہیں, جو بانڈز جانتے ہیں کہ کس تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے ایکشن سے پہلے وہاں پہ سارا معاملہ صحیح طے ہو جاتا ہے, اور اسی صحیح طے ہونے کی وجہ سے ہاتھ ہلانا چاہتے تو ہلاتے ہیں, اور اگر وہاں صحیح طے نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے, لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتے. پورا کا پورا معاملہ انسان کے ابھی سمجھ میں آنے والا ہے. یہ اتنی عظیم الشان جو فکر ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو کیا صورت ہے صحیح رائے قائم کرنے کی؟ اس مقام پر آپ تصور کیجئے کہ 1930 اور 40 اور 50 میں جن مفکرین نے جن تھاٹس کو پیش کیا ہے, کاش ان کی تھاٹس کو نکال کر کے آج کے لیے ہم سلیبس بناتے. مولانا سید ابو العالی مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اب رہا سوال کی ان ماورائے حس و ادراک, یعنی پیرا سائیکالوجی سے بھی اوپر جو معاملات ہیں, رائے قائم کرنے کے بارے میں صحیح صورت کیا ہے؟ کیا رائے قائم کریں اس طرح کے معاملات کے اندر؟ کیسے فکر ہماری صحیح ہو؟ تو اس کا جواب قرآن مجید میں جگہ جگہ دیا گیا ہے کہ انسان براہ راست خود اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے دیتا ہے. حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی کہ مچھر یا اس سے کم بھی مثال پیش کرے. ایک لفظ استعمال اللہ رب العزت نے کیا, اور سائنس اس کی بنیادوں پہ جا کے تحقیق در تحقیق کہتی کہ مچھر کے اندر بھی کیا کیا سائنس پوشیدہ ہے. اور اس پر اطمینان انسان اس طرح کر سکتا ہے کہ زمین و آسمان اور خود اس کے نفس میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں. یقین مانیے کہ یہ مفکرین سائنٹسٹ نہیں تھے, انہوں نے بایولوجی اور فزکس اور کیمسٹری آج کی ترقی یافتہ شکل میں نہیں پڑھا تھا, اس زمانے کے دور سے مطالعے تھے. لیکن قرآن کا علم اتنے دلوں تک پہنچا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آسمان و زمین اور اس کے نفس میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں, ان پر غور و فکر کرے, پھر غیر جانبدار ہو کر کے یہ سوچے. کیا جملہ استعمال کیا ہے؟ پہلے تو غور و فکر کرے, پھر اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے, غیر جانبدار, اور یہ سوچے کہ یہ نشانیاں ان حقائق کی شہادت دے رہی ہیں جو نبی بیان کر رہا ہے یا ان سے ہٹ کر کے. نبی جو بیان کر رہا ہے کہ تمہارا محور اور مرکز ایک ہے, بغیر محور اور مرکز کے ایک ایٹم نہیں کام کر سکتا, بغیر ایک اپنے نیوکلیس کے بغیر سیل نہیں کام کر سکتا, بغیر ایک آربٹ کے بغیر ایک سولار سسٹم میں جو چیز بدھی ہوئی ہے اپنے علاوہ دوسرے میں نہیں کام کر سکتا. تو پھر انسان کیسے ایک سے زائد کے معاملے میں پڑ سکتا ہے؟ کیسے پھر ایک کو چھوڑ کر کے کئی کو معبود بنا سکتا ہے؟ اور ایسی بے شمار نشانیاں ایسی ہیں. اور مولانا لکھا ہے کہ جو نبی بیان کر رہا ہے یا ان سے مختلف نظریات کی تائید کرے, خود سوچے, خود فیصلہ کرے, اور ان بنیادوں پر جن مغربی مفکرین نے غور و فکر کیا ہے وہ یقیناً اس حد تک جا کر کے پہنچے ہیں جس کا قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ لفظ استعمال کیا خداوند کریم نے, اور نیچرل طریقے پر بغیر کسی تعصب کا اور کسی معاملے کا چشمہ لگائے ہوئے نیچرل طریقے پر جس نے بھی غور کیا ہے وہ خداوند کریم کی وحدانیت تک پہنچ گیا ہے. خدا اور آخرت کے متعلق علمی تحقیق کا یہی ایک طریقہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. قرآن میں تدبر و تفکر کا طریقہ کیا ہے؟ اب آئیے ہم اس فکر کی طرف آتے ہیں کہ تھاٹ سے استفادہ کرنے کا اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. طریقہ جو سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے جیسا مولانا علی میاں ندوی نے افادات قرآنی میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے فہم کا اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب انسان بغیر کسی حجاب کے, بغیر کسی پردے کے اس کلام کے ذریعے صاحب کلام سے ہم کلام ہو. صاحب کلام یعنی اللہ سے بات کرے, اللہ سے گفتگو کرے, اللہ نے کیا کہا ہے اس کو سمجھ لے. اس کا راستہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت ہے. بغیر تلاوت کیے ہوئے ہم ترجمہ دیکھ کر کے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئیں, یقیناً کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا, مگر وہ فکر نہیں مل سکے گی جس فکر کی بنیاد قرآن مجید لے کر کے آیا تھا. پہلے تو تلاوت کر کے اسے جوڑ اور ربط اور محبت پیدا کرنا ضروری ہے. اور نوافل یا بندگان خدا کی صحبت بھی جنہوں نے اس راہ میں کام کیا ہے, موتی چنے ہیں,
उनका तजर्बा नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं गलत ऑपरेशन तो हो ही जाएगा। एमबीबीएस भी डॉक्टर हो जाता है, पढ़ने के दबाव से मोटी मोटी किताबें पढ़ ली है, मगर इंटर्नशिप करता है, जाके किसी तजर्बेकार डॉक्टर के साथ बैठ के ऑपरेशन सीखता है, उसके बाद जाके उसे कहा जाता है कि तुम ऑपरेशन कर सकते हो। तो कैसे मुमकिन है कि दिलों की रहनुमाई का मामला, फिक्र लेकर के इंसानियत की रहनुमाई का मामला बराह रास्त इंसान अपने आप कर सके, जब तक कि किसी तजर्बेकार के पास वो न बैठे, जिनके रगोपै में ये कलाम रच बस गया है। जरूरत इसकी है कि पढ़ने वाला इस किताब से बराह रास्त तारुफ और उन्स हासिल करे और ऐसा महसूस हो कि अल्लाह उसी से बात कर रहा है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराजी न साहिबे कश्शाफ। अब आइए फिक्र तक पहुंचे हम लोग, तो कुरान मजीद में उलूम बेशुमार है, 90,000 तक उलूम की बात कही है लोगों ने। अलबत्ता शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है कि गौर व फिक्र करने के लिए कोई 5 जुमरे बना दिए हैं, जिनमें हम गौर व फिक्र करें तो पूरी फिक्र इस्लामी निकल करके आ जाएगी। पहला, इल्मुल अहकाम। इस इल्मुल अहकाम में अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, सारे माशरती मामलात इसी के अंदर आते हैं। गोया शरीयत पूरी की पूरी जिसको हम लोग शरीयत समझते हैं वो इसके अंदर आ जाती है। इल्मुल जिदाल, ये भी एक इल्म है जिसके जरिए से जो लोग नहीं मानते हैं, जो इनकार करते हैं, उनके ऊपर दावा और दलील साबित करने के लिए एक इल्म और है, और मुनाजराना अंदाज़े हिदायत की ये तालीम है कि जब इतनी चीजें इंसान देख रहा है, एक सिंपल और सादा सी बात है कि रेगिस्तान में जाता हुआ एक देहाती देखता है कि ऊंट की मेंगनियां यहां पे गिरी हुई है, अलबार तदुल्लु अलल बाईर, उससे पता चल रहा है कि ऊंट आगे गया हुआ है। तो फिर फसमाओ जातो अबरुजिन कैफ ला तदुल्लु अलल हकीमिल खबीर, कि जिस तरह से इंसान भी जाता है तो देख लेता है कि ये मेंगनियां बकरी की है या ऊंट की है, तो पता कर लेता है कि अभी यहां से बकरी गुजरी होगी और यहां ऊंट गुजरा होगा। तो ये इतना आसमान जो बुरुजों वाला आसमान है, टिमटिमाते हुए सितारे हैं, हर चीज का निजाम बराबर चल रहा है, कोई साल 25 घंटे का और कोई साल 20 घंटे का नहीं हो रहा है, तो कैसे नहीं पता चलेगा कि खबर रखने वाला खुदावंद करीम कहीं ना कहीं मौजूद है। यह है ऐसी दलीलें देना जिसके जरिए से सामने वाले को जवाब दिया जा सके। इल्मुत तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, कुरान में वो वाकयात भी बयान किए गए, जैसा कि शुरू में बात आई कि जो कौम पिछली गलतियों से सबक हासिल करती है और अच्छे नमूनों को लेके आगे बढ़ती है, वही कौम तरक्की करती है। इल्म तज़कीर बिअय्यामिल्लाह में वो उलूम आते हैं। इन्नो फिरऔन अला फिल अर्द, बहुत बड़ा बन गया था वो, अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मगर उसने सबक हासिल नहीं किया तो पानी की एक लहर ने उसे बर्बाद कर दिया। वह माआदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, बड़े लंबे लंबे थे, बड़े चौड़े चौड़े थे। वह समूद फउहलिकू बित्तागिया, सरकशी हो गए थे, बागी हो गए थे। क्या हुआ? बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े इलाके, सूरत हाल क्या हो रही है? ये सब सबक लेने की चीजें हैं कि वो अल्लाह की मखलूकात में से एक छोटी सी मखलूक हरकत में आई तो नतीजा ऐसा होता है कि सारी इंसानियत मिलकर नहीं संभाल सकती। जो लेने वाले थे देने वाले बन जाते, देने वाले थे वो लेने वाले बन जाते। अचानक सूरत हाल ऐसी पेश आ जाती है। इसके बारे में यहां आखिर में बात होगी। इल्म तज़कीर बिअलाइल्लाह, गौर व फिक्र और निशानियों के जरिए से तालीम। गौर करो, सोचो, देखो तुम्हारी हैसियत क्या है। इस मच्छर के पर के बराबर भी तो हैसियत इस जमीन की भी नहीं है इस वसी कायनात के अंदर। इल्म तज़कीर बिल मौत वमा बादल मौत, आखिरत की भी एक तालीम है, एक आने वाला भी वक्त है, एक आने वाली भी दुनिया है। इनमें से एक एक के ऊपर बात हो तो इस्लामी फिक्र सामने आएगी, जिसमें से दावत फिक्र अमल की चंद मिसालें हम आपके सामने आज एक 5 मिनट में पेश करते हैं। जो बच जाएगा तो यहीं से हम लोग अगले हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते और लोग भी इंशाअल्लाह जुड़ जाएंगे। मौसम की नासाजगारी की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि बात हम लोगों के सामने आई, क्योंकि थोड़ी सी रूटीन से हट करके ये बात थी, इसको फिर से जहन में समाने की कोशिश करें। पहली बात तो यह थी कि इंसान की सोच की हद क्या है। इंसान सोचता है, उस सोच से फिक्र बनती है, और अल्लाह ताला ने इंसान की सोच की इजाजत दी है, लेकिन उस सोच के बाद जहां से हद खत्म होती है वहां पे वही की जरूरत पड़ती है, और वही है जो नबियों के जरिए से हमें पेश की गई। और अल्लाह ताला गौर व फिक्र की जो दावत देते हैं उसमें सच्चा और सीधा रास्ता यही है कि कुरान मजीद की औराक में जो चीजें हैं उस पर तदब्बुर करके अपनी फिक्र को सही किया जाए। चंद मिसालें पेश करने के लिए एक बात हम लोगों ने जहन में अभी देखी कि कुरान का अजीम शान मोजज़ा है इल्म और तदब्बुर।
इसी दो बात पर अपनी बात को आज खत्म कर देंगे। इल्म हम लोग जानते हैं कि अलिमा यालमो का मफहूम है किसी चीज को कमा हक़्क़ुहु जानना। ऐसे सरसरी तौर पर जानने को इल्म नहीं कहते। हमें भी मालूम है कि नज़ला हो तो कौन सा टैबलेट खाना चाहिए, एंटीबायोटिक्स कब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नजरात की तालीम में भी चीज आती है, लेकिन ये डॉक्टर तो नहीं बन जाते। सरसरी इल्म है ना, ताकि कुछ प्रिकॉशंस ले सके या इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते कि हम मेडिकल खोल करके बैठ जाए। कमा हक़्क़ुहु जानना, जब तक कि उसकी बारीकियों से हम वाकिफ नहीं होते। हकीकत का इदराक करना, यकीन हासिल करना। और अल इल्म इदराकु शै बिहक़ीक़तिही, इल्म किसी शय को उसकी हकीकत के हवाले से जान लेने का नाम है। जब यह तारीफ हमारे सामने आती है, खैर इसको भी छोड़ते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वो सलाहियत और इस्तेदाद रख दी कि मुख्तलिफ ज़राए और हालात के लिहाज से जानकारी हासिल करता है। और एक जुमला हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा। ये इस्लामी तालीम और इल्म और कुरान के मोजज़ाना अंदाज की पर तहकीक करने की बेस है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जो बहुत बड़े मुहक्किकीन में उनका शुमार होता है, उन्होंने लिखा है कि कुल्लहा की तशरीह से ज़हन इस तरफ जाता है कि तकवीनी मामलात, ये लफ्ज़ कौन जब इस्तेमाल किया जाता है तो पूरा इल्म साइंस इसके अंदर समा जाता है। कौन यानी कायनात को कहते हैं, तो पूरी यूनिवर्स में हर चीज आती है। तकवीनी मामलात में मारिफत अशिया, चीजों का इन्वेंशन करना, डिस्कवर करना, मालूम करना, तमाम की तमाम इंसान को होकर रहेगी। और इससे यह भी बात समझ में आती है कि तमाम साइंसी ईजादात, इंकशाफात, दरियाफ्तें ता क़यामत होती रहेंगी और सब की सब इल्म है। वो सब के सब इल्म है। इस्तिलाह में इल्म हकीकत अशिया को ठीक ठीक जानना और मजहूल से मारूफ की तरफ आने का नाम है। तो हज़रीन, बात हम लोग कर रहे थे वही, कुरान और उस पर तदब्बुर करने के लिए इल्म। और इल्म में कुल्लहा के ऊपर भी बात आई कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों के ज़हन और दिमाग में ये बातें डाल दी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने हर इंसान को इस तरह सिखाया जिस तरह एक उस्ताद बच्चे को सिखाता है। ऐसा मतलब नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि इंसान के अंदर इन बातों की सलाहियत और इस्तेदाद, एबिलिटी और काबिलियत रख दी गई। इसकी वाज़ेह मिसाल सूरह माइदा में मिलेगी, जहां फरमाया गया कि तुम अपने शिकारी जानवरों को शिकार पर पकड़ना सिखाते हो। कैसे? मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुत्तों को शिकार करने का तरीका एक उस्ताद की तरह सिखाया। इन आयात का और इस तरह की आयात का साफ मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान में इसकी इस्तेदाद और सलाहियत रख दी, जिससे इंसान इस इल्म को हासिल करता है, उस सलाहियत का इस्तेमाल करता है और उस सलाहियत पे गौर करता है। अब देखिए, गौर करने के लिए जो चीज बहुत बुनियादी है, बस यहीं पर खत्म करके आगे से बात शुरू करेंगे। जो चीज बहुत बुनियादी है, वो बुनियाद हम अपने बच्चों तक पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं। किसी बच्चे से स्कूल के पूछ लो कि आयत किसे कहते हैं, तो साफ कहता है कि आयत वो जो गोल सा दायरा बना होता है उसको आयत कहते हैं। भाई, गोल दायरे को अरबी में कहीं आयत कहते हैं क्या? इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, उसको दायरा कहते होंगे, मुदव्वर कहते होंगे, कुछ तो कहते होंगे, लेकिन आयत, गोल दायरे के लिए आयत का लफ्ज इस्तेमाल तो होता नहीं है, कहीं नहीं होता है। अब ये आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब ये गोल सा दायरा बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं सही, लेकिन जिस मतलब में कहते हैं वो गलत है। इसका मतलब क्या होता है? आयत जाहिरी अलामत या निशानी को कहते हैं, चुनांचे रास्ते के निशानात को आयत कहते हैं। दर हकीकत आयत हर उस जाहिरी चीज को कहते हैं जो छुपी हुई चीज की निशानदेही करे, और जब कोई शख्स इस जाहिरी चीज को पहचान ले तो वो जान ले कि उसने पोशीदा चीज को जान लिया, उसे समझ लिया। तअय्या बिल मकान से ये लफ्ज निकला हुआ है। तअय्या बिल मकान का मतलब ये होता है कि किसी सिमत में इंसान जा रहा है और उसको पता बता दिया गया कि LIC के पीछे वाले हिस्से में मेस्को कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर इस्लामी सेंटर है जहां पर मगरिब बाद ये मुहाजरा होगा। अब उसने पता मालूम किया, GPS ऑन किया या किसी से मालूम किया, वो LIC के पास पहुंच गया। अब यकीनन LIC पास पहुंचा, LIC लिखा है, तो फौरन आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, वहां रुक जाएगा। वहां रुक के देखेगा मेरा GPS सही काम कर रहा है, पहले ये देखेगा, सही जगह मैं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं ये देखेगा। अब मुझे आगे कहां जाना है उस पर गौर करेगा। नहीं मालूम हो पाएगा तो फिर क्या करेगा? किसी से पूछेगा। बस यही आयत का मफहूम है, यही आयत का मफहूम है। यह है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सफर हमारा शुरू हुआ, आलमीन तक पहुंचा। अब यहां रुक जाए,
जो रास्ता तय करके आए हैं सही था या नहीं सही था? तारीफ किसकी की? आलमीन से क्या मुराद है? रब से क्या मुराद है? अर्रहमान रहीम क्यों है वो? जब तक इसका जवाब न मिल जाए तब तक हमारा रास्ता सही नहीं हो सकता। यह है आयत का मफहूम। जिस आयत के मफहूम को हमने एक गोल दायरे में समेट करके छोड़ दिया है। यह गोल दायरा हमें यह बताता है कि आप यू हैव टू स्टॉप हियर, यहां रुको और सोचो कि क्या कहा गया है। तुम सही रास्ते पर आए हो या नहीं आए हो? अब आए हो तो किस रास्ते से तुम आए हो, इस पर गौर करो। अलहम्द को समझो, रब को समझो, आलम और आलमीन को समझो, और उसके बाद फिर जब इसको समझोगे तो आगे का रास्ता तुम्हारा सही जाएगा। और नहीं मालूम हो पा रहा है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता है पूछ लो उन लोगों से जो जानते हैं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो। खुदा की जात इंसानी समझ के दायरे में नहीं आ सकती, लिहाजा उसके मुतालिक उन जाहिरी अलामात ही से अंदाजा लगाया जा सकता है जो कायनात में बिखरी हुई है। इसीलिए कायनात और उनकी तमाम अशिया को आयात कहा जाता है। तिल का आयातुल्लाह नतलूहा अलैक, ये अल्लाह की निशानियां जो आपको बताई जा रही हैं। वह यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये तमाम की तमाम चीजें हमें इसलिए बताई जा रही हैं कि हर वो चीज आयत है जिसको देख करके रब्बे कायनात की अजमत हमारे दिलो दिमाग में जागुजी हो जाए, जिसको देख करके हमारी कमी और कमजोरी हमारे दिलो दिमाग के अंदर आ जाए कि हमारी कामयाबी उसी की मातहती में है। यहां अगर हम आ गए तो इस्लामिक फिक्र को समझने का आगाज होता है। तो हाजरीन, इसी पर अपनी बात को खत्म करके एक दो ऐलानात है। इंशाअल्लाह इसका तसलसल अगले हफ्ते इंशाअल्लाह चलेगा। वयसअलूनका अनिर रूह, सूरा बनी इसराइल 15वें पारे में इरशाद फरमाया गया कि लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो आप कह दीजिए कि यह अल्लाह का मामला है और रूह के बारे में तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। उस बहुत थोड़े से इल्म में कोई भी इंसान अपनी रूह को महसूस कर सकता है, यानी अपने आप को महसूस कर सकता है, रूहानी दुनिया को महसूस नहीं कर सकता। जो लोग इस बात का दावा करते हैं, रूहों से मुलाकात करवाने का दावा करते हैं, बिल्कुल गलत है। वो फ्रॉड से काम लेते हैं। इस्लामी अकीदे और क्या बल्कि नेचुरल तरीके पर भी ये पॉसिबल नहीं है। ये दावे ही है और ये जहनों को घुमाने के मामले हैं। लेकिन इंसान अपनी रूह को महसूस कर सकता है। इसकी कई दलीलें हैं। इंशाल्लाह किसी मौके पर और बात आई, तफसील से बात आएगी। हम सरसरी तौर पर आपको दिखा दें कि हम ले जाना कहाँ चाहते थे आपको। अब देखिए इसमें, अब देख कुछ चीजों को हमने यहाँ कुरान के रोशनी में तदब्बुर के वास्ते सामने हम लाए हैं कि किस किस चीज पर कुरान हमें गौर व फिक्र करने की बात करता है। एटम है, असगर और अकबर की बात कुरान कहता है। असगर और अकबर देखो तो कहां से एटम के बारे में आप अगर मालूम करें तो उसके अंदर कितनी ज्यादा लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे, एक सूरज की तवानाई से बढ़ करके उसकी तवानाई हुआ करती है। असगर की भी बात कही, तबियात की बात कही गई, जोग्राफिया की बात कही गई, हैवानात की बात कही गई, तारीख तबई, कीमियागरी, ज़राअत, इल्म वलादत, हिफ्ज़ान सेहत वगैरह वगैरह, इतनी बातें कही गई। इन बातों को देखें तो हमें समझ में आएगा कि गौर व फिक्र के हमारे दायरे क्या हैं। और कुरान से फिक्र निकलती जो है, तो हमेशा एक सबक याद रखें हम कि कुरान से जो फिक्र निकलती है, इस्लामी फिक्र सिर्फ रोजा, नमाज, हज और ज़कात का नाम नहीं है। इस्लामी फिक्र दुनिया को उसके तकाजे के लिहाज से क़यादत का नाम है। और यही क़यादत दरकार है इस वक्त जो साइंस और टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉक्सी वार और इंटेलिजेंस वार के अंदर जो चल रही है कि दुनिया को फिर से अमन और शांति की जो जरूरत है, इन तमाम चीजों से कैसे निकाला जा सकता है। हम दुनिया को 14वीं सदी, 1400 साल पीछे ले नहीं जाते, बल्कि 1400 साल पीछे की जो टार्च है उसकी रोशनी में आगे लेकर के जाना चाहते हैं। इसी पर बात इंशाल्लाह 31 को होगी इसमें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको और बातें सामने आएंगी और मजीद चीजें आएंगी।